Hello, my dear students. Welcome back in another video with your English teacher Shehnaz ma'am. Hoping all are safe and fine by God's grace. So, without taking too much time, let's start another chapter of your English course book. And this is your fourth chapter, a fact file. Have you heard the word fact or file? Facts means what? So, facts means something strange about someone or something. So, here we are going to learn about some facts of giraffe. So, before starting the chapter, I would like to ask you few questions and you have to answer. Have you ever seen a giraffe? So, what is the answer? Yes, you have seen. If I will ask you to tell me few sentences about a giraffe, so are you able to speak up? Yes, I know that you can. Okay, so students, as we know means yes, of course, you also know. And what do you know special or something special thing about this giraffe? So, giraffe is the tallest animal on the land. Yes, this you have learnt in your previous classes. Previous classes means already you have learned this in your EVS subject that the tallest animal on the land is that is giraffe. Yes. So anything is special that you know more about a giraffe? So yes, it is the tallest one. And it is its body has different spots on its body. Then the color of the giraffe, you can say that. Okay, so here let us start the chapter about a fact file, and this is about a giraffe. Okay, so in this chapter there are two students, Ashraf and Neha, who had to create a fact file. They have to create a fact file about their favorite animal. Okay, and they had created a fact file about an animal and they have taken the animal a giraffe. Okay, so let us see what they have created here, what they have created in integrated English science and art project. So let us see here, this introduction is given. Okay, so let us see introduction here. So the name giraffe originates from the Arabic word zarafa, which is translated means fast walker. सो जो ये ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिन हुआ इस वर्ड का जिराफ का? सो इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द Arabic word zarafa. Okay, its meaning is also known as that fast walker. Okay, earlier the giraffe was also known as the camelopard. Why they were calling the camelopard? Because of its camel-like shape and its leopard-like coloring. So आपने देखा है जिराफ की जो बॉडी है उसे हम काफ़ी पहले समय में कैमलोपर्ड कहते थे. क्यों कहते थे? बिकॉज उसकी जो बॉडी है, उसका जो बॉडी का शेप है, इट इज़ जस्ट लाइक अ कैमल. ओके, कैमल की बॉडी में भी आपने देखा एक हम्प है, इट हैज़ लॉन्ग legs and it is also looks too taller. So here we can say that its body looks like camel. And coloring, the color of the body is just like a leopard. So जो leopard का जो body का color है वो यहाँ पर similar है जिराफ के color से, इसलिए इसे पहले बोला जाता था camelopard. So here this is what introduction is given about a giraffe. Now what's up next now? So here in the appearance means how it looks like. Okay, so giraffe are the tallest land animal in the world. Yes, of course, ये हमें सबको मालूम है. The giraffe has a very long neck. Yes, we know that कि जिराफ की बहुत लंबी नेक होती, गर्दन जो है इसकी बहुत लंबी है. तो ये ईज़िली जितनी भी टॉल जो ट्रीज़ होते हैं तो ईज़िली ये उनके ट्री टॉप तक पहुंच जाते हैं, यानी कि खड़े खड़े वहाँ से ट्री टॉप तक पहुँच के अपना फूड कलेक्ट करते हैं, फूड खा लेते हैं, यानी कि ब्रांचेस है, ये लीव्स है, तो ये ईज़िली खा पाते हैं. सो दैट्स वाई दे आर द टॉलेस्ट वन एंड दे आर टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ इट. क्योंकि ये बहुत ऊंचे हैं इसलिए इन्हें एडवांटेजेस मिलती है
कि ये ऊंचाई से भी, कितनी भी ऊंचाई हो ट्री की, ये उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और ईजिली अपना खाना खा सकते हैं। जिराफ्स आर यूजली वाइट इन कलर विथ ब्राउन और रेडिश मार्किंग that cover its body but not the whites of their lower legs. Okay, so जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, जो जिराफ का जो बॉडी है, जो कलर है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट ब्राउन एंड रेडिश मार्किंग. ब्राउन एंड रेडिश मार्किंग मीन्स you can see there on their body parts there are spots are given, but the lower part of the legs, जो उनका नीचे पैर का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है, कलर नहीं है. दे आर प्लेन इन कलर, दे आर वाइट इन कलर. इनका जो पैर का जो नीचे वाला पार्ट है उनका कलर क्या है, वाइट है. बट द होल बॉडी दे आर रेडिश एंड ब्राउन. ओके, व्हाट इज द न्यू थिंग इज ऑल्सो गिवन हियर. दिस कलर हेल्प्स इन camouflage. Camouflage means to hide themselves. Okay, to hide themselves in the surrounding when they have sense of danger. तो इनकी जो बॉडी का जो कलर है, तो इस कलर को हम camouflage भी बोलते हैं, क्योंकि जब कुछ डेंजर होता है, जब ये अपने आप को डेंजर में महसूस करते हैं, तो ये अपने आप को वहाँ के सराउंडिंग यानी कि वहाँ के वातावरण में ये अपने आप को छुपा सकते हैं. बिकॉज ऑफ देयर बॉडी कलर रेडिश और ब्राउन. ओके, मार्किंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच जिराफ. हर किसी की बॉडी में ये मार्किंग जो है, जो ब्राउन एंड रेडिश जो मार्क है वो अलग अलग हैं. अब यहाँ पे बताया गया है द एवरेज वेट ऑफ अ मेल जिराफ. जो मेल जिराफ है उसका वेट कितना है, 1200 kg. एंड जो फीमेल जिराफ है उसका वेट कितना है, 830 kg. सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन. So what will be the question? Write the difference between the male giraffe and female giraffe. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आपको एक्सरसाइज में, ये उसका आंसर हो सकता है. और आंसर है the average weight of a male giraffe is 1200 kg and female giraffe weight is 830 kg. Okay, this is about appearance, how it looks like. Now habitat. Habitat means where they can find, where we can find this animal giraffe. So especially the giraffe population are found in parts of sub-Sahara Africa. सो ये कहाँ पर बेसिकली ज़्यादा पाए जाते हैं, जो इनकी पॉपुलेशन है ये सब सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. सो स्पेशली इन द नेशनल पार्क. तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स के भी नेम दिए हुए हैं जहाँ इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है. सो हियर सम दिस नेशनल पार्क्स आर गिवन. सो द पार्क आर हियर. मर्चिशियन फॉल नेशनल पार्क. Uganda has more than 1500 giraffes. The Etosha National Park, Namibia, the Kruger National Park, South Africa, the Serengeti National Park, Tanzania, in which we can even spot groups of more than 40 giraffes at a time, and the Masai Mara National Park, Kenya, which has suffered huge losses of the giraffe population. So किस एरिया में, किस पार्क में सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो वाला पार्क है माशी मारा नेशनल पार्क, कीनिया. यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है. और लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कहाँ है, कहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी. सो द लार्जेस्ट पॉपुलेशन आर फाउंड इन पार्ट ऑफ सब सहारा अफ्रीका. दिस कुड बी अ क्वेश्चन. This could be a question. Where are the largest population of giraffes found? तो सबसे जो लार्जेस्ट यानी कि ज़्यादातर जो जनसंख्या इनकी पॉपुलेशन है किस जगह पे है. सो आंसर कुड बी सब सहारा अफ्रीका. ओके, नाउ लेट अस सी हियर समथिंग मोर इज गिवन. Giraffes like open woodlands where they can use their height to see for great distances so they can क्विकली रन अवे इन द फेस ऑफ अप्रोचिंग डेंजर. तो इन्हें कैसी जगह पसंद है, तो इन्हें खुली जगह पसंद है. खुली मीन्स इन्हें खुला एरिया पसंद है, जहाँ की बहुत, जहाँ ज़्यादा ज़मीन हो उन्हें ये एरिया पसंद है, ताकि वहाँ से ये अपनी हाइट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस से यानी कि दूरी से, कुछ दूरी से
सब कुछ देख सके, जिससे कि क्या डेंजर है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर कुछ डेंजर हो तो ये वहाँ से क्विकली रन अवे, यानी कि क्विकली वहाँ से दौड़ सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल इज गिवन। बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल, what is the behavior and lifestyle? Like we are also, as a human beings, we are having our own behavior, we have our own lifestyle. So here giraffes are also having their behavior and their lifestyle. So अब हम जो खाना खाते हैं, basically we are eating in 3 times in a day. Okay, like breakfast, lunch and dinner. एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल, इनकी जो बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है। जिराफ्स स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ईटिंग ड्यूरिंग द कूलर पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो अब ये किस समय पे खाना खाते हैं, किस टाइम पे अपना खाना पसंद करते हैं? सो इट इज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड व्हाट दे आर डूइंग द होल डे दे आर टेकिंग रेस्ट। What they are doing whole day, they are taking the rest and chewing curd before consuming it again. Okay, chewing curd before consuming it again. So whole day they are taking rest and chewing curd to digest their food. Or one more amazing fact is given about the giraffe is the shortest sleep requirements. जो जिराफ्स होते हैं, जो इनकी जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो सोने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी है? 10 मिनट्स टू 2 आवर्स। तो मतलब उन्हें कितना सोना है? उन्हें सिर्फ 10 मिनट से 2 आवर्स तक की नींद उनके लिए बहुत है, सफिशिएंट है। तो एक दिन में वो कितना सोते हैं? 10 मिनट से, मीन्स 10 मिनट्स टू 2 आवर्स। नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी नीड टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स, है ना। हम ह्यूमन बीइंग से तो हमें स्लीप के क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर स्लीपिंग, वी नीड 7 to 8 आवर्स। हमें 7 से 8 आवर्स सोने की ज़रूरत है टू कीप आवर सेल्फ रिफ्रेश एंड टू कीप आवर माइंड एक्टिव। सो हियर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिराफ के बारे में कि ये सिर्फ 10 मिनट से 2 आवर्स तक सोते हैं। ओके, नाउ कम्युनिकेशन। सो हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर? Communicate means how they talk with their friends, with other giraffes. So that is communication, means to share our thinking, our ideas, our thoughts. So अब giraffes have the ability to whistle and communicate when they are at long distances. So here I have underlined such lines in communication, in behavior, lifestyles, or in diet also. So there is something interesting about the giraffes. So you go through these lines what I have underlined here. So giraffe कैसे whistle, जिराफ की में एबिलिटी है कि वह विसल, यानी कि विसल जैसा साउंड निकालते हैं। तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बाय विस्लिंग ना, बाय विस्लिंग। तो हम तो बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, लाइक डॉग्स आर देयर सो दे विल बार्क, लाइक बर्ड्स आर देयर दे आर चर्पिंग। सो सिमिलरली जिराफ्स आर विस्लिंग। तो अब वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ये कम्युनिकेट करते हैं विसल बजाकर, कि विसल। तो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जितने भी जो जिराफ्स हैं कितने भी डिस्टेंस में रहें, अगर वो ये विसल को सुनते हैं तो वो समझते हैं कि आवर फ्रेंड्स अनदर जिराफ्स आर कॉलिंग अस। सो दीज साउंड्स आर नॉट वेरी प्लेजेंट। अब जो ये विसल का जो साउंड है इतना प्लेजेंट नहीं है, बट इट इज़ वेरी शार्पर। लेकिन ये बहुत शार्प है, शार्पर है। किससे शार्पर है? काऊ के साउंड से। तो काऊ का साउंड क्या है? यू हैव हर्ड द साउंड ऑफ काऊ, दैट इज़ मो। सो दैट इज़ काऊ साउंड। बट हियर जिराफ का जो साउंड है वो विसल जैसा आता है, जैसे कोई सीटी दे रहा है ना। यू हैव हर्ड द विसल ऑफ प्रेशर कुकर, यू हैव हर्ड द whistling of the people when you are watching a movie in the cinema hall or in a theater. So वो किसका साउंड हुआ? वो विसल का साउंड हुआ। Okay, now let us see diet. What is this diet given here? So diet, this word you have heard in your science or maybe in your EVS.
So you have heard balanced diet. So what is that? So diet means the eating style, that the food that you eat, that is diet, that comes under the diet. And balanced diet means the right amount of food. Right amount of food means balanced food. So here what they like to eat, how they eat, and what are they eating. So the giraffes is a herbivorous animals. Okay, जिराफ को क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट ईटर एनिमल्स. ये प्लांट खाते हैं इसलिए हम इन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं. ओके, दे हैज़ लेस कंपटीशन फॉर फूड. इनको खाने के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए, फूड को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं करनी पड़ती है. क्यों? बिकॉज दे आर द टॉलेस्ट लैंड एनिमल. ईजली दे कैन कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम द ब्रांचेस और फ्रॉम द ट्री टॉप्स. ओके, जो एकदम टॉल ट्रीज़ होते हैं तो वहाँ से ईज़िली ये अपना फूड ले पाते हैं, यानी कि ब्रांचेस से, या ब्रांचेस से लीव्स लेते हैं या फिर फ्रूट्स तोड़ पाते हैं. सो जिराफ्स मोस्ट कॉमनली ईट फ्रॉम एसेसिया ट्रीज. सो किस ट्री से ये ज़्यादा खाते हैं? सो दैट इज़ एसेसिया ट्रीज. बट ऑल्सो इंजॉय वाइल्ड एप्रिकॉट्स. पर ये एप्रिकॉट्स भी खाना पसंद करते हैं. एप्रिकॉट्स, फ्लावर्स, fruits and birds. Okay, birds. This birds means not that birds, that is different one. This birds means कली. जो फूल से पहले जो कली होती है उसे हम birds बोलते हैं. They also eat seeds and fresh grass that grows after the rainy season. और इन्हें क्या खाना पसंद है? इन्हें फ्रेश ग्रास पसंद है जो कि रेनी सीजन के बाद उगती है. सो नाउ अ डेज रेनी सीजन इज गोइंग ऑन. यू कैन ऑब्जर्व आउटसाइड योर हाउस देयर इज़ ग्रीनरी, है ना. ग्रीनरी है सब जगह. आप देखोगे तो कैसा हो गया है? अभी ग्रीनरी है. सो हर तरफ हरियाली फैली हुई है. सो यू ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट द कैटल, दे यूज टू ईट दैट ग्रीन ग्रास and they like to eat. So here giraffes are also like to eat fresh grass. Giraffes need to drink very little water because they get 70% of their moisture from their food. Okay, अब इन्हें पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? Because they are eating plants, they are eating leaves and they are eating fruits. सो ऑलरेडी उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है प्रेजेंट होती है, इसलिए उन्हें पानी पीने की ज़रूरत कम होती है. नाउ थ्रेट्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रेट्स? थ्रेट्स मीन्स डेंजर. सो व्हाट इज़ डेंजर नाउ? दे आर द टॉलेस्ट लैंड एनिमल. ओके, सो व्हाई देयर इज़ थ्रेट फॉर दीज एनिमल्स? सो देयर इज़ थ्रेट बिकॉज लायंस आर द बिगेस्ट थ्रेट इन द वाइल्ड फॉर जिराफ्स. जो लायंस हैं, ऑब्वियसली लायंस आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. जो लायंस है वो कौन है? वो जंगल का किंग है, राजा है. सो जिराफ्स को लायन से खतरा होता है. जिराफ्स आर ऑल्सो हॉन्टेड बाय लेपर्ड्स एंड हाइनास एंड वाइल्ड डॉग्स. अब जो जिराफ्स हैं ये किसके द्वारा मारे जाते हैं, किसके द्वारा हॉन्ट किए जाते हैं? तो लेपर्ड्स, हाइनास एंड वाइल्ड डॉग्स. इन ऑर्डर टू डिफेंड देमसेल्व्स द जिराफ्स किक देयर अटैकर विद देयर लार्ज हैवी फीट. सो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं? ये अपने लॉन्ग लेग्स के फिट को यूज़ करते हैं. विद देयर लार्ज हैवी फीट, ये अपने पैरों से उन्हें किक करते हैं, अपने को डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाते हैं. ओके, सो हाउएवर 50% ऑफ द यंग calves do not survive as they are unable to protect themselves. सो यहाँ पे जो 50% यंग calves होते हैं, जो यंग वंस हैं, यानी कि जो बेबीज़ हैं जिराफ्स की, वो 50% अपने आप को नहीं बचा पाते. किससे नहीं बचा पाते? लायन से, लेपर्ड से, हाइना से and wild dogs से. So giraffes are also threatened by illegal hunting activities by the humans and are quickly reducing in number. और
ये इन्हें सिर्फ एनिमल से ही खतरा नहीं है, वाइल्ड एनिमल से, बल्कि इन्हें ह्यूमन बीइंग से भी खतरा है। बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वह आप जिराफ्स को अपने प्रॉफिट के लिए मारते हैं। फॉर देयर स्किन they need to kill the giraffes. Okay, so here's amazing giraffe facts are given here in this page. So giraffes do not have horns. Yes, they do not have horns. उनके हॉर्न्स नहीं होते हैं। ओके, अ बेबी जिराफ कैन वॉक विद इन 10 minutes ऑफ बीइंग बॉर्न एंड कैन रन सून आफ्टर दैट। अब जो बेबी जिराफ होते हैं वो आफ्टर बॉर्न होने के बाद 10 मिनट्स में दौड़ने लगते हैं। ओके, जिराफ्स आर द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। येस, ऑफ कोर्स वी नो दैट। सो जिराफ्स जो है सबसे टॉलेस्ट है, और ये अगर एक आदमी के ऊपर है ना, इफ़ दैट 3 men आर स्टैंडिंग टुगेदर ऑन द शोल्डर, सो तब भी ये उनकी बराबरी नहीं कर सकते, यानी इतना ये टॉलेस्ट हैं। जिराफ कैन रन मोर देन 30 miles पर आवर। जो जिराफ हैं 30 miles की स्पीड से रन करते हैं। आ बेबी जिराफ इज़ इवन फास्टर देन एन एडल्ट जिराफ। जो बेबी जिराफ होते हैं वो मोर देन 30 miles पर आवर की स्पीड से रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक्स एज पीपल। जितनी हमारे नेक में बोन्स है उतनी ही एक जिराफ के पास बोन होती है नेक में, बट इनके जो नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मच लॉन्गर, बहुत लॉन्गर होते हैं एज कंपैरिजन टू अस। द जिराफ इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ तंजानिया। जैसे कि हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है, तो इसी तरह से यहाँ तंजानिया का नेशनल एनिमल जिराफ है। ओके, वाइल्ड जिराफ्स लिव ओनली इन अफ्रीका। सो जो वाइल्ड जिराफ्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट। दे ईट लीव्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द giraffes? So as we know that human population is going day by day, and they need the land for agriculture activities, for road construction, for building, for making timbers. So what they are doing, they are cutting the trees, and they are destroying the forest. So what is going on now, forest is shrinking day by day. जो forest है वो दिन पे दिन घटते जा रहे हैं ना। सो जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो अब वहाँ के एनिमल्स कहाँ जाएंगे। सो जिराफ्स आर ऑल्सो हॉन्टेड फॉर देयर हाइड एंड मीट। सो जो जिराफ्स होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा शिकार किए जाते हैं। जिराफ टेल आर हाईली प्राइज्ड। जो जिराफ की टेल्स होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो अब इन ये चैलेंजेस है, ये क्या है चैलेंजेस, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ह्यूमन बीइंग ही है, क्योंकि उन्हें अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ना क्या चाहिए, लैंड चाहिए। जैसे आपने भी देखा होगा जो आपका एरिया है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, सो इन दिस एरिया देयर वर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट वर फाउंड अर्लियर। यहाँ पर क्या था, बहुत बहुत फॉरेस्ट थे, बहुत ट्रीज थे, बट पीपल एज दे नीड the land for construction, buildings, for road construction, and for agriculture land. So what they have started, they have started to cut down the trees. So this is the result, this is the challenge. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका सल्यूशन क्या है, सल्यूशन ये है कि we can educate local communities। हम लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ पे एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि वाई जिराफ्स आर इम्पॉर्टेंट, वाई फॉरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। The local communities are educated to take up sustainable practices that allow them to carry out their agriculture activities without affecting the integrity of the giraffes. Or we can improve the area of forest. Okay, reforestation means again we can grow the plants in the forest, then they become a tree. So there are reforestation projects in the most affected areas where the objective is to plant acacia trees to replenish those regions that were once full of life. Okay,
So you have learnt in your first chapter of English workbook, है ना, one chapter is given there, the forest man. Who is the forest man of India? So the forest man of India is this is Jaydev. Jaydev Japing is there. So already we have learnt the story about that. So this is what we need to reforestation. We need to grow plant. We need to secure the forest for the life of the wild animals. Not even wild animals, but for the birds also, because it is home of many wild animals as well as birds also. So this is what we have learnt in this chapter. So what we have learnt in this chapter, we have learnt a fact file about giraffe. So I hope you would learn everything new in each classes. So watch the video carefully. Really it will be helpful for you, and you can share these videos with your friends also, so they can also learn something new from here. Now take care of your health. Have a nice day.